Good morning, students. Welcome back. From last two lectures, we have been learning this lesson 2.6 Chasing the Sea Monster. Okay, ये लेसन हम लोग ने स्टार्ट किया था. What was that? कि यहाँ का इसका जो ऑथर है नरेटर प्रोफेसर एरोनेक्स. उनके फ्रिगेट जो उनका वॉरशिप था, उनके सामने एक अजीबोगरीब एनिमल आता है सामने, कंप्लीट बहुत ही स्पीड में, इन वेरी स्पीड. ओके, और द डबल ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्रिगेट. इन फ्रिगेट का जो स्पीड था उसका डबल स्पीड भी उसके सामने आता रहता है. एंड दिस पीपल्स वेर आफ्रेड ऑफ दैट. डर गए थे. इट वॉज ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड दे वर नॉट एबल टू सी वॉट एग्जैक्टली दैट animal was, what it was coming in front of them. They were unable to understand, so they were all afraid and stunned up, and they were not able to understand what should be taken to not to attack that animal towards their frigates. मतलब वो frigates के पास ना है, इसकी खबरदारी लेनी थी. तो they were not able to understand it and they were stunned. और वो सोच रहे थे दिन होना दो, सुबह होना दो, ताकि हम लोग को समझ में आए कि एग्जैक्टली व्हाट एनिमल इज एंड हाउ टू अटैक इट एंड सेव दमसेल्व्स. तो दिस वाज ऑल एक्सप्लेन. तो वी वेर स्टडिंग दिस थिंग. Okay, we will continue from here. There, a mile and a half from the frigate, a long blackish body emerged a meter above the waves. यानी they saw that, उन लोग ने देखा कि एक blackish body उनके सामने waves के ऊपर से बाहर निकल आया. Queering violently, its tail were creating considerable current. यानी उसका जो पूंछ था उसमें करंट पास हो रहे थे. The crew were waiting impatiently for orders from their leader. The latter, after carefully observing the animal, ordered the engineer to sail full stream towards the animal. And the crew means the members of the ship. They were all waiting for their leader to give an order so that they can move forwards. And they started. Okay, 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight from the animal, unconquered. The later was come nearer. It got up little speed and kept its distance. There was a distance between both of the one was the Abraham Lincoln, that is the frigate of the author, and that animal. उनके बीच में लगातार एक जैसे बराबर डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे. This chase dragged on for about 3/4 of the hour without frigate getting any closer to the sea animal. At this rate, it was obvious that we could never catch it. And the gap was constantly same. So the author was thinking that they won't be able to catch that animal because the distance continuously kept on the same, and they were not able to catch that animal. The Abraham Lincoln gathered speed, but so did the animal. This went on for the next hour. The Abraham Lincoln was not now speeding so much that its mast trembled down to their blocks. As soon as the Abraham Lincoln gathered the speed, means अपना speed जब उसने बढ़ाया, so has the animal also gathered the speed. मतलब वो भी उतने ही लगातार फास्ट होते गए. इसके फास्ट होने की वजह से क्या हुआ, उसकी जो मास्ट से ट्रेम्बल होने लगे और उसके ब्लॉक्स एक एक मास बाहर आने लग गए ब्लॉक से. What a chase! Now I can't describe the excitement that shook my very being. Ned Land said at his post, harpoon in his hand. Several times the animals let us approach. Then just an harpooner was about to strike. The citizen would steal off swiftly. मतलब हार्पनर वो है जिसके हाथ में हार्पन है. हार्पन एक ये है एम्यूनेशन है, मैंने बताया था. इट इज़ ए लॉन्ग शार्प एम्यूनेशन. ओके, वेपन अटैच टू ए लॉन्ग रोप, एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है. एंड थ्रोन बाय हैंड, हाथों से फेंका जाता है. और शूट फ्रॉम द गन. ओके, ये एक एम्यूनेशन है जो या हाथों से फेंका जाता है या तो गन से लोड किया जाता है, उसे रस्सी द्वारा बांधा जाता है. Commander Frigate then decided to use more direct methods. He said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln. All right, mate. Man the gun in the bow. अभी बोलते ठीक है,
ये भी द एनिमल इज ऑल्सो टू फास्ट एंड वी आर नॉट एबल टू कैच इट, तो वी विल नाउ शूट ऑन इट. आवर 4 कैसल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड. यानी उनका कैनन जो था, तोप जैसे थे, उसको लोड किया गया ताकि इसके पर एनिमल के पर अटैक कर सके. द कैनन फायर्ड इज शूट बट इट शेल पास सम फीट अबाउट द सिटीजन विच स्टेड हाफ अ माइल अवे. जब वो शूट किया तो क्या हुआ, उसका जो बॉडी, जो सामने जो एनिमल था, उसको टच करके उसका शेल बाहर उड़ गया हाफ अ माइल. ओवर टू somebody with better aim, the commander shouted, and $500 to the man who can pierce that infernal beast. अभी what the commander said, कोई और अच्छा एम वाले इंसान को सामने लाओ, अगर वो उसे शूट कर पाता है तो मैं अमेरिकन $500 उसे गिफ्ट के तौर पर दूंगा. Calm of eye, cool of features, and old grey-beard gunner, I can see him to this day, approached the cannon, put it in the position, and took aim for the good while. There was a mighty explosions mingled and cheers from the crew. एक बुजुर्ग गनर जो ओल्ड ग्रे मतलब थोड़ा एजेड पर्सन थे, वो अपने तैयारी के साथ आए कैनन वगैरह ये करके, और उनके ऊपर एक एम लगाया. एंड दैट वॉज इन माइट एक्सप्लोजन. जैसे हेम लगा, उसको लगा तो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन जैसा ऐसा हुआ. तो सब लोग क्रू जो लोग थे उसमें फ्रिगेट में, जो वॉरशिप के ऑथर के साथ, वो सब खुश हो गए. द सेल रीच्ड इट्स टारगेट. इट ate the animal but bounced off its rounded surface and vanished into the sea 2 miles away. What happened? He shooted at that animal, but what happened? The shell of that cannon, जो गोली उन्होंने दागी थी, वो उसका शेल बाहर उड़ के पानी के अंदर गिर जाता है. हाँ, ड्रेड सेड द ओल्ड गनर इन हिज हैंगर, दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट. न वॉट द मैन सेड, जो जिसने ये निशाना लगा था उन्होंने क्या बोला, ये मॉन्स्टर शायद 6 इंच का आर्मर प्लेट डाल के खाल है उसके ऊपर जो है, बॉडी के ऊपर जो है, शायद वो 6 इंच आर्मर प्लेट हो सकता है. प्लेट ऐसा कुछ सख्त चीज़ रहेगा तो ही बाउंस होके कोई भी शेल बाहर उठ सकता है ना. अगर इट इज़ अ फ्लैश एनिमल हो, इंसान हो, फ्लैश, अगर आपको ऊपर शूट किया जाता तो नेचुरली इट पर्स टू इनसाइड योर बॉडी. अब ये क्या हो रहा है, ये उसको टकरा के उसका शेल बाहर आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट पर्सिंग इनसाइड द एनिमल. तो उनको लगता है कि ये कोई तो सख्त मेटल का बना हुआ चीज़ है, ऐसे नहीं लगता. द हंट वाज ऑन अगेन. हार आफ्टर हार वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लास्ट साइन ऑफ फेयरनेस. अवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल्ड ऑन द टायरलेस. ये लोग बहुत स्ट्रगल किए, बहुत थक गए थे इससे शूटिंग के, इससे मारने के रात में. At 10:50 in the evening, that electric light reappeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. एक इलेक्ट्रिक लाइट फिर से वहाँ पे ग्लो करने लगे. At what time? 10:50 in the evening. The monster seemed motionless. Was it asleep? Perhaps weary from its workday, just riding with the waves. This was our chance, and Commander Frigate decided to take full advantage of it. He gave his orders. Now they saw that monster, and it was motionless. मतलब it wasn't moving. तो उनको वो लोग क्या बोलने लगे, it might be tired due to this during the day he was quite busy. ये लोग एक दूसरे को चेस करने में, मारने में, तो माइट बी वो उसकी वजह से थका होगा. एंड दैट सो इट इज़ मोशनलेस. व्हाट डिड द कमांडर थिंक दैट दिस इज़ द फुल चांस टू ईट इट अगेन. उसको फिर से हम लोग अटैक करें, ये बेहतर चांस होगा बल्कि वो सोचने लगे. द फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, स्टॉप 2 cable lengths from the animal. A profound silence regained from the deck. We were not 100 feet from the blazing core of light whose glow grew stronger and dazzled the eyes. यानी अभी उनके जो फ्रिगेट है उसके पास आ रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, 100 feet from that light. Just then, leaning from the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing his dreadful harpoon.
barely 20 feet separated him from the motionless animal. नेडलैंड ने क्या किया, वो फिर से एक अपना हार्पन लेके तैयार हो गए. बैरली 20 फीट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशनलेस, मतलब 20 फीट दूर थे उस एनिमल से. ये all at once his arm shoot forward and the harpoon was launched. I heard the weapon making a ringing sound as if it hit some hard substance. Now this man again he shooted at that animal. As soon as he shoot, it make a sound of ringing. किसी मेटल चीज़ को अगर आप मारते हो तो एक रिंग टिन जैसा बजता है. As soon as he shooted that, the weapon it made a sound of ringing sound. Okay, जैसे कि किसी आर्ट सब्सटेंस पे लगा. The electric light suddenly went off and two enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spart masts and the yardarms from the lashing. जैसे ही उन्होंने शूट किया, as soon as they shoot ना, the electric light which was glowing on that part, इट सडनली वैनिस्ड आउट, मतलब उसको लग गया होगा जिसकी वजह से. और जो पानी वहाँ के फव्वारे जैसे उड़ रहे थे, इट ऑल्सो फेल ऑन द डेक ऑफ द फ्रिगेट, मतलब फ्रिगेट के ऊपर. इनका जो ऑथर है उनके शिप के ऊपर उठ जाता है. ओके, सी स्पैर ब्रेकिंग स्पैर मास, वहाँ पे सब इसकी वजह से काफ़ी सारे ये नुकसान होती है. मास वगैरह ये हो जाता है. यार्ड हार्म्स फ्रॉम द लैशिंग एंड ऑल, टॉपलिंग क्रूमैन, मतलब वहाँ पे जो क्रूमैन थे वो लोग भी थोड़े ये हो गए. The hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it. I was hurled into the sea. See, actually this story, what this author is saying, okay, it is the part of the story जो किताब लिखी गई थी. Adapted from the sea, over the name of the book is given. Adapted from 20,000 Leagues Under the Sea by Jules Verne. ये जो किताब है उसका एक हिस्सा ही दिखाया गया है. इसमें पूरा क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, बट इट सपोज टू बी अ सबमेरिन. ओके, सबमेरिन आपको पता है जो पानी के अंदर पनडुब्बी बोलते हैं आप लोग, तो वो एग्जैक्टली वो है. वो लोग ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है. और वो उनको चीज़ कैसा लग रहा था, ऐसा लगता है वो अंधेरे में उनको समझ में नहीं आ रहा था व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. उनको लग रहा था कोई ह्यूज एनिमल उनके सामने आया है जो भयानक है, जो उनके ऊपर अटैक करने वाला है. एक्चुअली इट वाज अ सबमरीन. ये जब पूरा कहानी आप जब वो किताब पढ़ोगे तब वो स्टोरी समझ में आ जाएगा. बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बुक, ओनली फ्यू पेजेस आर एक्सप्लेन ओवर हियर. ओके, तो उसके छोटा सा पार्ट ही सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है. तो ये एक हमारे लिए एक मिस्ट्री बन के रह गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इट वाज. इट मस्ट बी प्रोबेबली अ सबमरीन इन द वाटर विच दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एंड दे थॉट इट टू बी मे बी इट्स ए ह्यूज एनिमल. ओके, आई हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. ये लेसन हो चुका है and I am winding it up now right now. Thank you.